پارٹ 1 کے لیکچر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز میں ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن، ڈیٹا انفارمیشن میں کیا ڈفرینس ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا لیکچر اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آج ہم نے کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ بھی ایک مکمل سسٹم ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک عام سسٹم کی بات ہم کرتے ہیں تو جس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس مل کر کام کرتے ہیں، تو کمپیوٹر بھی اٹ سیلف ایک سسٹم ہے جس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس مل کر یوزر کے ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور دوسرا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر۔ اب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر یہ دونوں مل کر ہی پورا ایک کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک پہ ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر کمپیوٹر کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ تو ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہارڈ ویئر کے بارے میں۔ جتنے بھی فزیکل کمپوننٹس کمپیوٹر میں موجود ہوتے ہیں، جیسے کی بورڈ ہے، جیسے ماؤس ہے، مانیٹر ہیں، پرنٹرز ہیں، ہارڈ ڈسک ہے، یہ تمام کے تمام جو فزیکل کمپوننٹس ہیں یہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ اور ایسے کمپوننٹس ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہو، جو جسمانی طور پہ موجود ہوں، ہمیں نظر آ رہے ہوں، جنہیں ہم فیل کر سکتے ہوں، جنہیں ہم ٹچ کر سکتے ہوں، وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹینجیبل کمپوننٹس، جتنے بھی ٹچیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹچ کر کے فیل کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ ہارڈ ویئر وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں، یعنی جنہیں آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ جب انہیں آپ اٹیچ کر لیتے ہیں پھر یہ آپ ان کے ساتھ ورکنگ کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جتنی بھی ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، میموری اور اسٹوریج ڈیوائسز اور پروسیسنگ ڈیوائسز کمپیوٹر میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سافٹ ویئر کے بارے میں۔ جتنے بھی نان فزیکل کمپوننٹس، یعنی ایسے کمپوننٹس جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، وہ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، یعنی سافٹ ویئر کمپیوٹر کے کمپوننٹس تو ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے، مطلب ان کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، آپ انہیں ٹچ نہیں کر سکتے۔ یہ انٹینجیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، نان ٹچیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ہم فیل بھی نہیں کر سکتے۔ سافٹ ویئر وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کیے جاتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں، جبکہ سافٹ ویئر کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کیے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم لائک ونڈوز، ورڈ، ایکسل، ایڈوب فوٹوشاپ، جتنے بھی نام ہمیں پتہ ہیں، یہ سب کے سب سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات یاد رکھیے گا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر تو فزیکل کمپوننٹس ہیں۔ اب ان تمام کمپوننٹس کو ورکنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے، ان کو یوزیبل کرنے کے لیے کہ وہ ہارڈ ویئر ہمارے دی گئی انسٹرکشنز کے مطابق کام کر سکیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ورکنگ کریں، اس کے لیے کمپیوٹر سسٹم میں سافٹ ویئر ہونا ضروری ہے۔ اس کی بہت اچھی اگزامپل میں یوں دوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن بنایا ہے۔ ہماری باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، سب کے سب ہارڈ ویئر ہیں، لیکن دیکھا جائے سارے ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک روح رکھی ہے، سول ہے۔ اس سول کے بغیر ہمارے باڈی کا ہارڈ ویئر بالکل بیکار ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سسٹم میں ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے سافٹ ویئر کے نام سنے ہوں گے، جیسے ونڈوز، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، کورل ڈرا، گوگل کروم، موزیلا فائرفاکس۔ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں، یاد رکھیے گا ان کی فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرے ہوتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر، ان کی بھی فردر آگے 2 ٹائپس آ جاتی ہیں۔
पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं इन तमाम टाइप्स के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं, डेटा को प्रोसेस करवाते हैं और आउटपुट आप रिसीव करते हैं। ये जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को, तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर के डिफरेंट फंक्शंस को एलोकेट करने के लिए और उनको काम के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर खुद कोई काम नहीं करता, बल्कि उसको काम के काबिल बनाने के लिए, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कोई गेम खेलनी है, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, या हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किए जा सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कंप्यूटर को होती है क्योंकि कंप्यूटर ने अपने तमाम फंक्शंस को सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंट्रोल करना होता है। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए जा रहे। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक लेटर टाइप करना चाहते हैं, ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। इसको परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के रूटीन टास्क परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑफिस में एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और आपका रोज़ का काम ये है कि आपने कंप्यूटर पे लेटर टाइप करके उनका प्रिंट निकालना है और आगे उनको आपने सेंड करना है, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपकी अगर ये प्रॉब्लम है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस, रिजल्ट्स बनाने हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर फिर भी काम करता है, लेकिन यूज़र अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि यूज़र को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आप बुक्स के टाइटल, हैंडल्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए और उनको काम के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी यूज़र के पर्टिकुलर टास्क को या कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे दो इकसाम आ जाती हैं, एक को पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है और दूसरे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
पैकेज्ड और कस्टम बिल्ड, ये दोनों की दोनों टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इनकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक हैं पैकेज्ड और दूसरे हैं कस्टम बिल्ड। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं कि पैकेज्ड में और कस्टम बिल्ड में क्या फ़र्क होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑफ द शेल्फ यानी पहले से ही प्रोग्राम किए गए हों, पहले से ही बनाए गए हों, जिनको बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखकर पहले से ही डिज़ाइन करती हैं, पहले से ही डेवलप कर लेती हैं, वो पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये पोटेंशियल यूज़र्स के लिए होते हैं। मतलब अगर आपको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो आप सॉफ्टवेयर वेंडर से जाके वो सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उस पर काम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर तमाम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को देखकर पहले से डेवलप कर दिए हुए हैं। आप सिर्फ इनकी सीडीज़ या इनके बारे में सॉफ्टवेयर को मार्केट से ख़रीदते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर से ख़रीदते हैं और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम नहीं किए जाते, मतलब पहले से मौजूद नहीं होते। जब कोई ऐसा टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं जिसके लिए पैकेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप अपने लिए या अपने इदारे के लिए ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेते हैं। तो जब किसी एक यूज़र या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर ख़ास तौर पे डिज़ाइन करवाया जाए, डेवलप करवाया जाए, उसको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका मतलब है कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। ये किसी भी इदारे या यूज़र की नीड को, उसके टास्क को, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज डेवलप करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे होते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, उनकी फीसिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, या रिटेल चेन्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, मेडिकल स्टोर्स में, बुक स्टोर्स में आपने देखा होगा जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे होते हैं, वो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए ही डेवलप किए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड कहलाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर पहले से बने बनाए मौजूद होते हैं वो पैकेज्ड कहलाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर किसी यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को देखकर ख़ास तौर पर डेवलप किए जाते हैं, उन्हें कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 3 में ये डिस्कस किया कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स, पैकेज्ड और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।